Good morning, everyone. Shall we start? Can you all hear me? Yes, sir. Okay, shall we start? Why there are so few students in the class? Rest of the people don't know or what? Mm-hmm. So let's begin. Let the people join as and when they come. Tell me one thing. Like last time we had type of we started the discussion, and I just asked what is hereditary, heredity, what is inheritance. So you all spoke something. आप लोगों ने कुछ कहा था. क्या बताया था आप लोगों ने? What is inheritance? Mm-hmm. You all can speak. There is no need to write, in chat. If your voice is not okay, then you put things in chat. Otherwise, you all can put your mics on and speak up. There is no restriction. Okay. Unlike other classes, I would allow you all to unmute yourself and speak up. That's not an issue at all. Whenever you like to speak. So I just asked, what is inheritance? Last time we had started the discussion, but we did not continue. The inheritance is the process by which characters are passed on from parents to offspring. Right. And we had a little discussion on mendel too. Mendel. Who is Mendel? Sir, father of genetics. Yeah. And then we started trying to say, defining genetics. How do you define genetics then? Gregor Mendel is called the father of genetics, and like why he has been termed or entitled as father of genetics. Did he do something very great about genetics in genetics? So he's been remembered like that, or did he do something which is a pioneering thing, like the first thing which nobody else has done it? What is the main reason? What are those things which he has done? Any idea? You must be knowing it, because you all have studied biology since class 6, and you must be knowing
what genetics is like. You must be knowing the definition of genetics too. How do you define genetics? Any idea? Anybody speaks up? Branch of biology which deals with Hmm. Deals with what? which deals with the Hmm. Try it out. Yeah, yeah. Study of genes. Deals with genes, right? It's a branch of science. It's a branch of biological sciences which deals with the genes, which are responsible for the traits in any organism, or you call it characters in any organism, their interaction and their expression. Expression is what, and interaction is what. Do you have any idea? Mhm. So can you repeat the question? I said it's a branch of biological sciences which deals with the genes that are responsible for displaying the characters in an organism and their interaction, and of course their expression too. So I asked, what is gene expression and what is gene interaction? आई गेस जीन एक्सप्रेशन मीन्स एक जीन दिखना मीन्स एक इंडिविजुअल में वो जीन का जो जीन्स प्रेजेंट है वो फिजिकली दिखना इज जीन एक्सप्रेशन एंड जीन इंटरैक्शन इज जब सपोज टॉल एंड शॉर्ट आर द बोथ जीन्स ऑफ हाइट उनमें से कोई एक एक्सप्रेस होना इज जीन इंटरैक्शन. Okay. Anyways, well tried. But I tell you, gene expression is the depiction or the display of the character for which it is responsible. A gene expression is the process in which a character or the trait is expressed or displayed in an organism because of the presence of that particular gene, right? Got it? So, and what is gene then when you go for the definition of gene? You would say this is nothing but a fragment of DNA molecule, a fragment of DNA molecule with nitrogenous as their base sequences, which are responsible for synthesizing a particular protein, which would subsequently helpful in displaying the particular character or the trait. Trait is the word which was used by Mendel, and otherwise before Mendel could come up with his own, observations, the things were not at all known to anyone. So people used to call, there are some factors in individuals which have been transferred from one generation to the next generation, and those factors are called, later they have been termed as a term called allele, alleles, or the singular of alleles is allelomorph. So one gene, which is earlier called as allelomorph, and they were not knowing, Mendel was not knowing, nobody was not knowing what exactly used to happen in the body. They said there is something, some factor which is influencing this particular thing, because the son looks like father. That means there is something, some factor in father which has been transferred to the son or the daughter or the progeny, where the same characters are being displayed. So how does this happen? So Mendel was a monk. You all must be knowing it. He was a monk in a monastery, a Christian monastery. He was monk and he had a backyard in his monastery. So in that backyard, he used to grow. He was fond of gardening, so he used to grow plants. So he was observing the plants, so particularly the Pisum sativum or the pea plant, which was there in the garden, in the backyard of that monastery.
So he used to observe the kind of flowers they bear, the kind of fruits they bear. And the fruits means the pea pods, the type of pods they bear, and the type of seeds they have in the pods. So all these things he used to observe. When he sees the next generation, when the plants are crossed and the new generation, new plant comes up, then again he has observed the same thing. He took it's a tedious job, simply observing and writing it down without any background. They were not having any background at that time. They were all predictions. Like this is happening just because of some factor which is there in parents. So what is that factor? So he said it must be some factor which is influencing the passing of character from the fatherly generation to the progeny generation. So how does it happen? Then slowly, on the basis of his observations, the observations he was collecting, he was tabulating. On the basis of those observations, he had found that if something, that factor is something which is only a single entity, if that factor is a single entity, the observations which he used to see are not possible. The observations which he used to see are not possible if that factor is a single entity. Because sometimes what the progeny was expected to have the characters were different. How come those different characters come in between? So then he thought of something which he said the factor is nothing else, it's not a single entity, but it always exists in pairs. So he started calling him pairs of alleles. Pairs of alleles means pairs of factors which were present in father generation and which are inherited to the progeny or the son or the daughter generation. So what were they? So he wasn't knowing it. He said it's something which is there in the organism, and on the basis of the observations he used to tabulate for every generation. Now there will be a small assignment for you all, like how many generations he had studied and how many years he had spent in observing those observations. So this thing you have to find it out, okay? And when we meet next, that is tomorrow, so you will be telling me how many years he took to tabulate his observations and how many generations he had studied to come to some conclusions. So he was assuming that the kind of characters he was observing in future generations, sometimes sporadically some new characters come up in the plant, in the progeny generations. How does that come? So he thought if the factor which is there, which he assumed as a factor, if it is a single entity, it would not have been happened like that, like some new characters or new traits would come up. So he said there must be a pair of factors, that means a pair of alleles. So he has established that the pair of alleles are there in every organism for every character that it displays. For every character that an organism displays has got a pair of factors or pair of alleles. So pair of alleles is some entity, a paired entity, which would help in expressing that particular character of that organism. This is called expression. Okay, the alleles he was calling it, but this is allelic expression. Earlier the word gene wasn't there, so they used to call this is the expression of pair of alleles. That is the character. The character which is been observed, which is been displayed in a progeny or the future generation, is nothing but the allelic expression. The pair of alleles which are responsible for the character are expressed in future generation. That's called gene expression in modern terminology. At that time, it was called allelic expression. Okay, expression of alleles. So there are a few things which he established. That factor which is responsible for the characters to be expressed is nothing but pair of alleles. They always exist in pairs. So how does they perform? How do they, carry on or pass on the characters to the future generation? He again, on the basis of mere observations that he made, he said maybe
maybe these characters, the unexpected characters which have been displayed in the future generations that he observed, this is because that pair of alleles which is responsible for this character has got some kind of dominance or some kind of recessiveness. What is this dominance? That means most of the time the same type of character, a particular character, is been displayed in a particular fashion. For example, when you say arbitrary situation ले रहा हूँ मैं, मेंडल ने जैसे बताया था वैसे मैं बता रहा हूँ. Suppose tall height of an individual या height of a plant, or don't take it otherwise, कोई भी ऑर्गेनिज्म का यानी ह्यूमंस का ही लेंगे, दी हाइट की हम काउंट करना शुरू करें तो मेंडल के हिसाब से देयर मस्ट बी अ पेयर ऑफ alleles which is responsible for the character called height, right? So when he said कि this they would be existing in pair, that means कि दो चीजें हैं जो उस particular height के लिए responsible है. And because of on the basis of his observations he said no, ये जो दो हैं, दो एंटिटीज हैं एक पेयर के फॉर्म में, उसमें से शायद एक हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है और एक कभी कभी एक्सप्रेस करता है. क्योंकि जब उसने पी प्लांट्स के ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन किया तो समटाइम्स देयर यूज्ड टू कम अप विद अ नया एक्सप्रेशन दिखता था. सपोज करें कि ग्रीन और येलो कलर के सीड्स हैं, हाँ मैं आर्बिट्ररी सिचुएशन ले रहा हूँ, मेंटल जैसे कि वैसी बात नहीं कर रहा, तो हमेशा ग्रीन सीड्स आते थे, कभी कभी येलो सीड्स आते थे. तो कभी कभी येलो सीड्स कहाँ से आ गए? द कैरेक्टर इज कलर ऑफ सीड. और ये जैसे कहा गया था कि सीड कोट के बारे में भी मेंटल ने पढ़ा था, वो रफ सरफेस वाले सीड कोट भी था, किसी किसी में स्मूथ सरफेस वाला सीड कोट था. तो सीड कोट का नेचर जो रफनेस है या फिर स्मूथ है, ये कैसे आ रहे हैं? हमेशा स्मूथ नजर आते थे, कभी कभी रफ आते थे. व्हाई दिस रफ हैज कम? बिकॉज कैरेक्टर क्या है? द सीड कोट. या फिर फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर मान लीजिए येलो आना था, येलो की जगह व्हाइट हो गया या फिर पर्पल हो गया, व्हाटएवर द कंडीशन में भी. तो ये अलग से बीच में इन सम जनरेशंस, इन सम प्लांट ऑब्जर्वेशंस, उसमें ऐसे अलग से कैरेक्टर क्यों नजर आते थे? दो इट वाज एक्सपेक्टेड, जैसे ग्रीन सीड है तो हमेशा ग्रीन सीड ही निकलने चाहिए थे, या स्मूथ सीड्स हैं तो स्मूथ सीड्स ही आने चाहिए थे. तो वो अचानक से रफ सीड्स क्यों आने, रफ कोटेड सीड्स क्यों आने लगे? So then he started, it was all assumption. He was a good statistician, I would say. On the basis of observations, every researcher has to be a good statistician. Unless and until you have the, the instinct of statistics in you, it becomes very difficult to conclude or inference your research work. आपके रिसर्च वर्क को कंक्लूड करने के लिए आपको एक लिटिल बिट ऑफ स्टैटिस्टिशियन भी होना जरूरी है, एक स्टैटिस्टिकल इंस्टिंक्ट भी आप में होना जरूरी है कि आप जो डेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं वो किस प्रकार से सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये मालूम होना चाहिए, और वे कैसे करते हैं ये भी मालूम होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई वुड से कि अच्छे रिसर्चर को एक अच्छा स्टैटिस्टिशियन भी होना चाहिए. सो डोंट फॉरगेट, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा स्टैटिस्टिक्स भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो वैसे भी आप लोग 5th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में पढ़ोगे बायो स्टैटिस्टिक्स. सो छोड़ेगा नहीं पीछे आपका ये मैथ्स वाली जो चीज़ें हैं वो कभी नहीं जाती हैं. तो वो जो बीच में अलग से जो दूसरे कलर के जो एक्सप्रेशंस दिखते थे, तो ये कहाँ से आए? तो दैट ही कुड एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस कि शायद वो जो पेयर है उस पेयर में से एक जो है हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता चलता है, और कभी किसी मौके पे दूसरा वाला भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है. तो वो बोला गया है कि अच्छा, तो ऐसा है जो बार बार अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, जो फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस कर पा रहा है अपने आप को, तो उसने कहा कि वो डोमिनेंट एलील है या डोमिनेंट एलोमॉर्फ है. और जो कभी कभी एक्सप्रेस कर पा रहा था अपने आप को, उसे उन्होंने कहा कि ये रेसेसिव एलोमॉर्फ है. एलोमॉर्फ इज सिंगुलर वे ऑफ सेइंग एलील्स, ठीक है. तो कहने का मतलब कई लोग आम बोलचाल में अलील सिंगल को भी अलील बोलते हैं, बट इट्स ऑलवेज अ पेयर ऑफ एलील्स, सिंगल वन इज कॉल्ड एलोमॉर्फ. सो एक डोमिनेंट जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता था उसको हम डोमिनेंट
एलिलोमॉर्फ कहने लगे, और जो कभी कभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता था उसे हम कहने लगे कि वो रेसेसिव यानी कि अपोजिट ऑफ डोमिनेंट एलिलोमॉर्फ है। लेकिन ये कैसे होता है? इट वाजंट एक्सप्लेन्ड एट दैट टाइम कि ये होता कैसे है, बट लेकिन किंतु परंतु उन्हें बताया, he could come to some conclusions, some inferences, और फिर उन्होंने कुछ postulates यानी प्रिंसिपल्स डिफाइन किए कि शायद ये ऐसा होता है इसलिए शायद ये ऐसा है, या फिर शायद ये ऐसा है इसलिए इस तरीके से चीजें बदलती हैं। तो एक तो उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि हम एक एंटिटी नहीं है, फैक्टर एक नहीं है, वो हमेशा पेयर में रहते हैं। पेयर में रहने के बाद उन्होंने ये बताया कि एक ही कैरेक्टर के लिए पेयर है, हमेशा एक ही जो है कैरेक्टर का एक रूप हमें हमेशा देखने को मिलता है, हम उसको डोमिनेंट कहने लगे, और जो कभी कभी आता था उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हम उसको रेसेसिव कहने लगे। तो इस प्रकार से वो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एस्टैब्लिश किए कि हर कैरेक्टर के लिए एक पेयर ऑफ एलिल्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें से एक जो है हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है मोर फ्रीक्वेंटली, जिसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और एक जो है वो कुछ कॉम्बिनेशंस में या कुछ कंडीशंस में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, उसे हम रेसेसिव कहते हैं। तो ये कौन सी कंडीशंस है? तो उन्होंने बोला कि अच्छा, यानी कि पेयर में दोनों के दोनों यदि वो ग्रीन सीड के लिए ही है, ग्रीन कोटेड या स्मूथ कोटेड सीड के लिए है, तो ही स्मूथ कोट आएगा। अब पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो जो दूसरा जो पेयर था, उसका जो पेयर में दूसरा जो रेसेसिव था, यदि वो भी दोनों के दोनों साथ में पढ़ेंगे तो भी शायद ये अपने आप को रेसेसिव कैरेक्टर को डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। डन। लेकिन यदि वो हाइब्रिड कंडीशन में आए कि यदि पेयर में से एक डोमिनेंट हो और एक रेसेसिव हो, तो क्या है, एज एक्सपेक्टेड, सपोज करिए वो स्मूथ और रफ कोट के लिए था, तो पेयर में से एक स्मूथ के लिए है और एक रफ के लिए है इन केस, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कि आधा स्मूथ और आधा रफ, आधा स्मूथ और आधा रफ, यानी कि एक हाइब्रिड सिचुएशन आनी चाहिए थी। हाइब्रिड आप लोग समझते हैं, है ना, हाफ ऑफ चीजें मिलके वो एक सिंगल एंटिटी बनाती है, तो हाइब्रिड सिचुएशन आनी चाहिए थी, बट हाइब्रिड सिचुएशन वाज नेवर ऑब्जर्व्ड। हाइब्रिड सिचुएशन कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया, हमेशा एक ही ऑब्जर्व किया गया, एक डिस्प्ले बहुत ज्यादा एक्सप्रेस होता था, यानी एक प्रकार का कैरेक्टर का एक रूप बहुत ज्यादा दिखता था, यानी कि ग्रीन या स्मूथ सीड कोट का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा होता था, और रफ वाले सीड कोट का एक्सप्रेशन काफी कम या कभी कभी होता है। तो अब यहाँ उन्होंने ये चीज को कंक्लूड की, लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिफाइन किया, वो ये कि किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए देयर आर अ पेयर ऑफ एलील्स, अ फैक्टर व्हिच इज अ पेयर ऑफ एलील्स, उसमें से एक एलील जो है वो किसी एक रूप के, उस कैरेक्टर का एक रूप, एक कॉन्ट्रास्टिंग, हम इसको बाद में लोगों ने कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन भी कहने लगे, ट्रेट्स बोलने लगे, ट्रेट एक वर्ड आ गया, यानी सीड कोट के स्मूथ होना या रफ होना, ये दो ट्रेट्स हैं, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट्स हैं। कैसे? सीड कोट एक कैरेक्टर है, उसके दो ट्रेट्स हैं, एक ट्रेट ऐसा है कि वो स्मूथ कोट आता है, एक ट्रेट ऐसा है जो रफ कोट आता है। तब ज्यादातर केसेस में मेंडल हैज ऑब्जर्व्ड दैट सीड कोट जो है स्मूथ ही मिलता था। तब उन्होंने कहा कि जो अपने आप को मैक्सिमम टाइम एक्सप्रेस कर पा रहा है तो वो शायद डोमिनेंट कहलाएगा, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बहुत कम सिचुएशंस में या बहुत कम कॉम्बिनेशंस में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो उसे उन्होंने रेसेसिव या फिर अपोजिट ऑफ डोमिनेंट कहा। अब रही बात, यदि दो पेयर में से दोनों के दोनों वो पर्टिकुलर ट्रेट यानी स्मूथ वाले ट्रेट के लिए एलिलोमॉर्फ्स हैं, तो वो स्मूथ ही कोट आता है। अब देखा ये गया है कि यदि मान लो वो आधा, कहने का मतलब है अब दूसरा एक प्लांट उनको मिला जिसमें रफ सीड्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया, रिंकल्ड जिसको बोलते हैं, रफ सीड्स रिंकल्ड, उनके सीड कोट जो है सर रिंकल्ड रहती है।
यदि रिंकल सीड्स आते हैं दूसरे, यानी कि उसमें भी वो पेयर में से दोनों के दोनों, लॉ ऑफ डोमिनेंस अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ, इनके ऑब्जर्वेशंस थे, दोनों के दोनों यदि मान लीजिए रिंकल्ड या फिर रफ सीड कोट के लिए ही एक्सप्रेस करते हैं, कोड करते हैं, तो एक प्लांट ऐसा मिलेगा जिसमें रिंकल्ड सीड्स मिलेंगे, एक प्लांट ऐसा मिलेगा जिसमें स्मूथ। अब देखा ही गया कि दो अलग अलग ट्रेड्स एक कैरेक्टर के एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स से एक्सप्रेस होकर दो प्लांट्स मिले, जिसमें एक स्मूथ कोट वाला और एक रिंकल्ड कोट वाला। जब ये दोनों क्रॉस किए जाएंगे, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय whom? बाय मेंडल दैट कि आधा स्मूथ आधा रिंकल्ड या फिर आधा रफ आना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं आया जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। देन ओनली ही सेड कि नहीं, ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि शायद जो अपने आप को बार बार एक्सप्रेस कर रहा था वो एक प्रकार का डोमिनेंट एलोमॉर्फ है। वो डोमिनेंट होने के कारण वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए कि वो पेयर में से एक डोमिनेंट ट्रेट को डिनोट करने वाला एलोमॉर्फ हो और दूसरा रिसेसिव ट्रेट को डिनोट करने वाला एलोमॉर्फ हो, दोनों साथ में भी रहेंगे तो रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करता है। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। दैट मींस लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब कि किसी भी कैरेक्टर के जो दो ट्रेट्स हैं कॉन्ट्रास्टिंग, उस ट्रेट्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पेयर ऑफ एलील्स हैं वो हमेशा एक ट्रेट जो डोमिनेंट होता है वो दोनों के दोनों, यानी कि अब एक नए टर्म्स आएंगे, अभी आप देखिए, दोनों के दोनों सेम टाइप के ही ट्रेट फॉलो करने वाले जीन्स हैं या एलोमॉर्फ्स हैं, तो हम उन्हें कहते हैं होमोजाइगस, है ना। अब जब दोनों अलग अलग होंगे, यानी कि एक स्मूथ कोट के लिए और एक रिंकल कोट के लिए है, तो ऐसे वाले पेयर ऑफ एलील्स को हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। ये अब ये जाइगस वाली सिचुएशन कहां से आ गई? तो ये होमोजाइगस मतलब कि दोनों के दोनों सेम टाइप के एलोमॉर्फ्स हो, एक ही कैरेक्टर के दो ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल एक पेयर ऑफ एलील्स में से एक हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है और अपने आप को डोमिनेंट प्रूव करता है। तो हमने उसको डोमिनेंट एलोमॉर्फ कहा था, और जो नहीं कर पाता है उसको हमने कहा था रिसेसिव। लेकिन रिसेसिव वाला एलोमॉर्फ कब अपने आप को एक्सप्रेस करता है? जब वो होमोजाइगस सिचुएशन में रहेगा, यानी कि जो दोनों के दो पेयर में से दोनों के दोनों रिसेसिव ट्रेट को ही डिस्प्ले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। इसीलिए मेंडल ने जो ऑब्जर्वेशंस में कभी कभी अजीब से कैरेक्टर्स बीच में आ जाते थे उसके एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए ही। तो ये जो कैरेक्टर का जो डिस्प्ले है विद इन टर्म्स ऑफ टू ट्रेट्स विद रिस्पेक्ट टू वन पेयर ऑफ एलील्स, ये है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, अब दूसरी बात देखा ये गया कि ये कब कब पॉसिबल है। सोचिए, मेंडल एक मॉन्क थे, बेसिकली वो कोई बायोलॉजी वाले स्टूडेंट नहीं थे, बट ही वाज अ गुड स्टैटिस्टिशियन। वो डेटा अच्छा जमा कर रखते थे और उनके ऑब्जर्वेशंस का जो कंक्लूजन किया, इट वाज ग्रेट। वो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वो उनके ऑब्जर्वेशंस इतने अच्छे और उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इतना अच्छा था कि उन्होंने ही कुड कंक्लूड फ्यू प्रिंसिपल्स, उसमें से एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, यानी कि हर कैरेक्टर के लिए जो दो ट्रेट्स होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, वो ट्रेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक पेयर ऑफ एलील्स होते हैं, उसमें से एक हमेशा अपने आप को डोमिनेंट रखता है और एक हमेशा अपने आप को रिसेसिव रखता है। डोमिनेंट वो होता है जो हमेशा मोर फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस होता है, दो वो होमोजाइगस कंडीशन में रहे या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहे। डोमिनेंट वाला ट्रेट के लिए जो एलोमॉर्फ था वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव वाला एक्सप्रेस करने नहीं देगा। यदि रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब है कि वो पेयर में होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल एलोमॉर्फ है। ठीक है, अब रही बात, कुछ और चीजें उन्होंने कंक्लूड करने की कोशिश की, मतलब ये सिर्फ सिंपल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उनका कंक्लूजन था। दैट वाज ग्रेट, दैट वाज समथिंग वेरी बिग एट दैट टाइम। एंड फिर एक चीज देखी उन्होंने जिसको हम बोलते हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा अभी फिलहाल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करके, लेकिन अब उन्होंने एक चीज देखी कि ये जो दो पेयर की जरूरत उन्होंने सोचा ही क्यों, व्हाई द नीड या व्हाई द नेसेसिटी ऑफ पेयर ऑफ एलील्स अराइज, वो कैसे इट हैज कम अप,
वो कैसी चीजें बीच में है कि पेयर होना चाहिए? वो इसलिए कि जब देखा गया कि जब जाइगोट फॉर्म होता है, प्लांट्स में भी है एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों मिलते हैं, राइट? तो जब ये जाइगोट फॉर्म होता है तब वो हाफ जो है मदर की तरफ से, हाफ जो है फादर की तरफ से आ रहा है। अब ऐसा है, हमें ये भी मालूम है एक मियोसिस नाम का प्रोसेस है जिसके थ्रू भाई जो उसका सेटअप, ये आज हम समझते हैं, पर सोचिए कि उस समय जब ये चीजें इतनी क्लियर नहीं थी, लोगों को इतना मालूम था एक सेल है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस है जो उसका कंट्रोल सेंटर है, उसके अंदर कुछ तो भी है जिसको इसको क्रोमैटिन कहा था उन्होंने, न्यूक्लिक एसिड्स कहा था, क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर थे, वही शायद रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि लोगों ने न्यूक्लियस को हटा के डिवाइड करने की कोशिश की तो प्रोजेनी सर्वाइव नहीं की, है ना? फिर बाद में देखा गया ये एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे, बट पीपल वर नॉट नोइंग कि वो न्यूक्लिक एसिड में है क्या, वो न्यूक्लियस में है क्या, इन चीजों के बारे में मालूमात होना बाकी था। क्योंकि मेंडल जब ये सब चीजें कर रहे थे, दैट वाज इन 1860s की बात थी, और हमारे पास डीएनए के बारे में जानकारी जो आई है वो 1950s में आया, करीब करीब 70-80 साल बाद आया, जब हम जानने लगे कि नहीं ये जो फैक्टर है जिसको मेंडल ने एलील कहा था वो कुछ और नहीं जीन है, वो कुछ और नहीं डीएनए का फ्रैगमेंट है। ये समझने को हमको 70-80 साल लगे, और मेंडल ने जो चीजें लिख के चले गए वो 1960s की बात है, 1964 की बात है, वो लोगों को पहुंचा कब? 1901 में, क्योंकि 1901 में उनके काम को पब्लिश किया गया, तब लोगों को समझ में आया कि अरे he has already told these things which people were observing, which scientists were observing in those days when they were trying to do something on न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर, और सो कॉल्ड जीन के ऊपर। जीन तो भी कॉइन नहीं हुआ, तो ये तब तक लोगों से इट वाज it was at a secluded place. The knowledge, the data, the observations of Mendel were all not credited. They were all not credited, they were not acclaimed, they were like put like that only, they was kept like that. But when the people have started working on that, because he was a monk, so he wasn't given that credit, because there was people who were biologists and who were working at that time, in those times. Anyways, तो हुआ ये था कि छोटा सा किस्सा है इसके पीछे कि वो when he could make those principles को उन्होंने जब suggest किया, and he took the whole observation, the book of his observation to the nearby university. अभी आप मुझे कल के असाइनमेंट में एक चीज और जोड़िएगा कि कौन से यूनिवर्सिटी मेंडल गए थे और किन से मिले थे, और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस को शो किया था। See, this is the observation which I have made in last so many years with so many generations of plants by breeding them manually, and then I could come to some conclusions. What do you suggest here? What do you think about these conclusions, these inferences? That scientist or the professor or whosoever it was, नाम आपको पता लगाना है कि किन से मिलने गए थे और कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ, पता लगाएंगे आप। तो when he approached him with all his observations, he was, that particular person went through his observations and he said, this is all of no value, this is all rubbish. Okay, it was commented like that. Then he said, okay, whatever it is, maybe I'm not from the sciences, the biological sciences, so I may not be knowing how to proceed with the research activity in this aspect, but anyways, please keep this stuff with you because it's of no importance to me. When you said it's rubbish, it's of no value. Then he went off. He continued as a monk, I think till 1880s या 1885 तक वो जिंदा रहे as a monk, and he passed away. But 64 से जो पढ़ा हुआ था वहाँ पे वो स्टाफ उनके लाइब्रेरी में या उनके जगह पे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का एक बड़ा सा बुकलेट था. But when people started, जब वो अब 3 और आपका असाइनमेंट बढ़ते जा रहा है, आपका याद करते जाइए क्या क्या करना है आपको. अब एक और असाइनमेंट ये है कि वो कौन से 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1900 में
काम शुरुआत की इसके बारे में, इस एस्पेक्ट्स में जिसको हम आज जेनेटिक्स कहते हैं, उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, दे कुड फाउंड दैट दिस वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन बाय सम 30-35 years ago by some monk in कौन से कंट्री के थे, ऑस्ट्रिया। तो सम monk in some monastery in Austria, जिन्होंने इसके ऑब्जर्वेशन रखा था, जिसकी जो एक बेसिस है आज हम पढ़ने जो जा रहे हैं, आज हम जो कंक्लूड करने जा रहे हैं, they were not at the point of conclusions, but they were doing the experiments. They said this all been done and we have got this as a basis for propagating this particular branch of biological sciences. तो उन्होंने उस चीज को बाहर लाया and his observations were published in 1900 में। तो वो पब्लिकेशन होने के बाद फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड सबको पता लगा कि हाँ, these are the principles. So he has been entitled as father of genetics. जेनेटिक्स तो बाद में टर्म आया था, तब तक तो वो टर्म भी नहीं था। आपने शायद एक और बात मैंने शायद बताई होंगी आप लोगों को, क्या नाम है उनका, रोजलिंड, आई एम फॉरगेटिंग नेम्स, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में जिन्होंने बताया था, कौन थे, फ्रैंकलिन, किसी को मालूम है? हाँ सर, रोजालिंड एंड फ्रैंकलिन। हाँ, रोजलिंड फ्रैंकलिन जो है वो एक लेडी थी जिन्होंने ऑलरेडी न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च किया था, एंड इट वाज हर एक्स-रे फोटोग्राफ ओनली which was later used by Watson and Crick to propose the DNA model. So जब तक 1950s नहीं आया, 1950s और कहाँ, ये 1864 या 65 की बात है मेंडल की, इतने सालों में हम सिर्फ assumptions पे ही चल रहे थे, जो assumptions ग्रिगल मेंडल ने विदाउट एनी बेस उस समय कंक्लूड कर लिए गए थे on the basis of mere his observations in his backyard with by some sativa pea plant by crossing over. सर फ्रैंकलिन ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। रोजलिंड फ्रैंकलिन ने डबल हेलिक्स का नहीं, डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर तो अपने वॉटसन क्रिक का है, बट शायद वो आइडिया फ्रैंकलिन की। yes that's what I'm saying कि she had photographed, x-ray photograph किया था DNA का, which was a basis of double helical structure जो derive किया था, propose किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, उसका basis था रोजलिंड फ्रैंकलिन। रोजलिंड फ्रैंकलिन was the first person to get the picture of that particular DNA molecule which suggests that it's a double helical structure, but she could not conclude. She was doing work on it but she passed away early, बहुत ही early ages में she left us. So there's a controversy in that aspect कि उसकी वो फोटोग्राफ, उसके PhD के स्टूडेंट का एक फोटोग्राफ था, वो it was called photograph 51. आप नेट पे सर्च कर सकते हो, फोटोग्राफ 51 सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा रोजलिंड फ्रैंकलिन का वो पिक्चर, जो कि सजेस्ट करता है कि इट्स ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। लेकिन ये 1920s की बात है, 1920s से लेकर 1950s तक ये काम चल रहा था। 1930s या 35 या समथिंग में रोजलिंड शी पास्ड अवे आई सपोज, लेकिन उन्होंने 1920s में ही काफ़ी सारा वर्क कर दिया था, और ये डबल हेलिकल का स्ट्रक्चर का जो मॉडल फोटोग्राफ होता है एक्सटेंट डिफ्रैक्शन में, वो उनके पास 1920s में था। बट शी वाज टू, क्योंकि ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम हो रही थी, तो दे वर नॉट नोइंग, बायोलॉजिकल सैंपल्स में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होती नहीं थी, बट शी डिड दैट। उनके जो स्टूडेंट्स थे वो मिलके किए थे। उनका एक कमेंट है, यदि आप लोग उनके बारे में पढ़ोगे तो ये फोटोग्राफ जो 51 था, वो रोज बैठ के इन लोग डिस्कस कर सकते क्या हो सकता है, क्या मॉडल हो सकता है, ऐसा पिक्चर क्यों आया, ऐसा फोटोग्राफ क्यों आया, विच वॉज वेरी ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट एक्सरे फोटोग्राफ था वो। तो उन्होंने वहाँ पे नोट लिखते थे। तुम लोगों को पोस्ट इट्स मालूम है, पोस्ट, ये जो येलो कलर की स्ट्रिप मैसेजेस रखने के लिए आती हैं, पोस्ट इट बोलते हैं, स्मॉल कमेंट स्लिप्स आती हैं येलो कलर की, वो एक तरफ से ग्लू लगा रहता है, ऐसा निकालिए कहीं पे चिपका दीजिए आपको कोई नोट लिखना है तो उन्होंने उस समय ऐसे पोस्ट इट वाले लेबल्स लेके उस फोटोग्राफ के ऊपर
एक स्टिकर लगाया था when she was out for some few days from the lab कि this bugger is really making a difficult scene for us. यानी कि ये जो है मौलिक ये जो फोटोग्राफ है ये हमें बहुत परेशान कर रहा है कि ये है क्या. ऐसा एक कमेंट भी लिखा हुआ था उनका. बट वही है क्योंकि बायोलॉजिकल साइंसेस थे वो एक्सरे डिफ्रैक्शन वाली स्टडीज किए थे उन्होंने एंड इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी अपने वॉटसन क्रिक में से जो क्रिक की जो वाइफ है काफ़ी अच्छी क्लोज फ्रेंड थी रोजलिन की एंड वॉटसन ने जब वो ही प्रपोज द मॉडल एंड ही वाज मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड जब क्लेम हुआ वो काफ़ी तारीफ हुई उनकी तो तब एक कमेंट भी था जो थोड़ा सा है ना बोलते ना घमंड सा आ गया था वो वॉटसन को तो उन्होंने एक कमेंट भी कहा था कि रोजलिन वाज फूल इनफ नॉट टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर पिक्चर एज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो ये बहुत क्रिटिसाइज किया था लोगों ने बाद में कि किसी ने नहीं पता लगा पाया तो यू जस्ट कैन नॉट कॉल हिम फूल किसी ने पता नहीं लगा पाया किसी ने उनके पास सबसे पहला फोटोग्राफ मिला था बट शी कुड नॉट शी वाज ट्राइंग टू डू इट मतलब देखा जाए तो वॉटसन ने भी कौन सा उससे अगले साल बता दिया क्या नहीं ना ही आल्सो टुक 30 इयर्स टू डू दैट तो कहने का मतलब है एंड दैट वन साइंटिस्ट शुड नॉट मतलब वन शुड नॉट ब्लेम द अदर वर्कर और द रिसर्चर लाइक दैट कि वो फूल इनफ है या ही इज अ फूल नॉट टू गेट द नॉट टू कंक्लूड द हिज ऑब्जर्वेशंस इट्स नॉट लाइक दैट क्योंकि उनकी अपनी एक मेहनत होती है दैट्स व्हाट आई सेड इट वाज अमेरिकन थे ये इंग्लैंड की यूरोपियन थी ऊपर से जूश बैकग्राउंड की थी एनीवेज सो वो कंट्रोवर्सी है वो शायद हम थोड़ा सा नेक्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में तब तक तो एनीवेज तो लॉ ऑफ डोमिनेंस वाली बात हम कर रहे थे उसके बाद दूसरी एक बात ऐसी आ गई हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वी वुड स्टॉप ओवर हियर बट आपको कुछ चीज़ें पता लगानी जैसे मैंने कहा क्या कहा था पता लगाने के लिए आपको 2-4 चीजें हैं कल के क्लास तक आप लोग ढूंढ के आइएगा एक तो ये कि मेंडल ने कितनी जनरेशन्स तक स्टडी की थी कितने साल तक उन्होंने काम किया और दूसरी बात कि वो क्या बोला था कौन से 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के काम को रिकॉग्नाइज किया और पब्लिश किया उसके पहले कुछ और चीज पूछा था मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी और किस पर्सन के पास मेंडल ने अपना वर्क दिखाया था हाँ आप थोड़ा सा सर्च करिए गूगल में तब आपको पता चलेगा कि वो किसके पास गए थे और किनको उन्होंने अप्रोच किया था वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी है कोई तो देखिए बताइए कल तक वी टुमारो अगेन एंड विल कंटिन्यू और प्रिंसिपल्स को अपन क्लियर करेंगे बाकी जो 2 प्रिंसिपल्स हैं ओके चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच एंड आस्क एवरीबॉडी टू जॉइन द क्लास क्योंकि वैसे भी ये टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ने हैं हमको कहना चाहिए कि पूरे का पूरा यूनिट मेरी तरफ पूरा का पूरा पेपर मेरी तरफ है तो वी नीड टू गो फास्ट आप लोग को भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का समय आ गया है क्या नहीं नो सर अभी एडमिशंस हुई क्या आप लोग की नहीं सर एडमिशंस का भी नहीं पता अभी तक कुछ ध्यान रखिए शायद वो भी आ जाएगा कुछ दिनों में फिर उसके साथ साथ एग्जामिनेशन फॉर्म भी आ जाएगा साथ में क्योंकि आप लोग तो अभी 3rd सेमेस्टर में चले गए हो ना तो आपको फीस भरनी पड़ेगी लास्ट टाइम कैसा था कि 1st to 2nd के तो फीस नहीं रहती है सिंपली एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं अभी 3rd सेमेस्टर के लिए आप लोग को फिर से एप्लीकेशन करनी पड़ती है एनीवेज शायद आ जाएगा क्योंकि कुछ दिन पहले बात चल रही थी ये फर्स्ट ईयर का एडमिशन सब खत्म हो गया अभी तो वी वुड बी लाइक प्रोसीडिंग विद 3rd and 5th एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे सी यू टुमारो थैंक यू थैंक यू सर Thank you, sir.